So, good morning, students. So, today's topic is how to perform a hypothesis testing and what are the different types of testing that we can perform on to test the hypothesis. So, in hypothesis testing, the tests are divided in two parts. One is parametric test and second is non-parametric test. Then yesterday also in the one our lecture we have seen what is exactly the difference between parametric test and non-parametric test. So here we have seen the main difference between these two are in the first one the parametric is applied when the distribution मतलब जो data set है जिस पे आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है उसमें जो values दिए गए हैं that values are distributed normally मतलब उनका जो distribution एक normal range में है and here the data distribution is skewed बहुत सारा disturbing मतलब बहुत कम value है कोई बहुत ज्यादा level पे कोई middle पे बहुत skewed है बहुत सारे अलग अलग level पे values है. The parametric test is used when the data is in the form of quantitative means measurable and here it is an qualitative मतलब आप उसको measure नहीं कर सकते number में. तो qualitative मतलब जब हम बताते quality ओके वो excellent है poor है average है performance में likewise so on which you cannot perform an actual mathematical operation. Here it is applied when the scale of measurement is a metric scale that is interval or ratio. जब data आपका interval या ratio में तब इसको use किया जाता है and here if the data is in the form of ordinal and nominal then we are going to use this. Then again when the question asked in the test is like you have to find out the mean or standard deviation or variance. तो आपको पता है कि जब मुझे मीन निकालना है एवरेज निकालना है तो आपको एडिशन डिवीजन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगने वाले अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है अगेन यू रिक्वायर सम मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो जब ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस है that to whom you have to answer on given data set then you have to go with the parametric test. लेकिन जब आपको बोला है कि परसेंटेज में कुछ चीजें निकालो ओके yes और no में आंसर देना है so that time you can go with a non parametric. As we are performing this test on mathematical base on a quantitative base so this test is very powerful but here this test is less powerful. So this is the main difference between these two. Then next one. Now, what are the different types of tests which are coming under parametric and non-parametric? I think so. Chi-square test is also taken by Sheikh ma'am in your data mining. So that chi-square test is coming in the non-parametric example. Now in parametric example, the first example is Z test, then second is T test. Again, T test have a number of variation like paired test, non-pair test, then student t-test, Walchen t-test. So t-test is also having a number of variation. Then next is a one-way ANOVA. Again, there is a two-way ANOVA test is there. So in parametric, these are the different tests are coming. In non-parametric, the example I have quoted already is a chi-square test. Then second is Wilcoxon-Ransom test. Kruskal-Wallis H test. So these are the different tests which are divided in either parametric or on non-parametric test. So here again, what is the procedure if you want to perform a parametric test procedure? So very first is it involves the population parameter means कोई भी टेस्ट जो पैरामीट्रिक के अंदर आती है उसमें आपको जो डेटा आपको दिया गया है उसका मीन मतलब उसका एवरेज जनरली बहुत हर इसमें टेस्ट में निकालना पड़ता है. सो दैट इज अ फर्स्ट है. सेकंड as it is an hypothesis hypothetically based so you have to first make some assumption. टेस्ट परफॉर्म करने के पहले आपको एक कोई स्ट्रिक्ट assumption पहले कंसिडर करना है यानी नल हाइपोथेसिस पहले आपको कंसिडर करना है और उसके बाद ही आप क्या करोगे टेस्ट परफॉर्म करोगे एंड यू हैव टू use any of the test which is suitable for given data. If it is a non-parametric then it does not involve a population parameter. मतलब क्या इसके अंदर mean, standard deviation, variance ये जो भी parameters है
formulas है that does not involve in a non-parametric test. Again second, the data is measured on any scale. इसमें data कोई भी scale पे measure हो सकता है, ordinal या nominal, ratio और interval. All types of data can be available here, and we are going to see the example here is a Wilcoxon rank sum test. अब हम एक छोटा example लेते हैं. What is exactly rational, interval, ordinal और nominal? ये data क्या होता है? So this is a very good table where they have given what is exactly the difference or what are the examples of all kind of this types of data. If I talk about the nominal data, so nominal data is generally comes in the category. Category means example कि marital status, either दो status रहेगा, married or not married. Then the gender can be male and female. So it is coming in the कैटेगरी. जब डेटा आपका कैटेगरी में डिवाइड होता है आइदर दिस और दिस, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल. देन सेकंड इज एन ऑर्डिनल डेटा. सो इन ऑर्डिनल डेटा इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरी एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर. सो हियर द एग्जांपल गिवन इज अ स्टूडेंट लेटर ग्रेड. सो स्टूडेंट्स को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये कैटेगरी को एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, लाइक ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस. तो कैटेगरी बट इन द फॉर्म ऑफ सम सीक्वेंस और सम इन द सम फॉर्म ऑफ सम रैंकिंग. Then next is the interval kind of data. Interval kind of data can be example given is it is having all these three categories. तो जिसमें example उन्होंने दिया है जिसमें temperature अगर हम check करते हैं, so temperature can come in a particular interval like 90 to 95, 95 to 100 or 85 to 90. So it comes in the form of category. Then next is last one is a ratio. Ratio means जिसमें generally ratio दिया जाता है. जैसे देखो example काफी बार जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो पूछते ओके आपका एज क्या है. ओके इफ एज इज अ 20 and height is suppose 5.4, so they tell you कि आपका जो वेट है ना वो ये रेशियो में ही होना चाहिए. तो जनरली एज और हाइट के हिसाब से वेट बताते कि ये इतना वेट प्रॉपर रहेगा, इतना वेट प्रॉपर नहीं रहेगा. सो व्हेन द थिंग्स आर इन रेशियो, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड में होते हैं, सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज द रेशियो. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास which can be used. Then next we actually start with now a parametric test procedure जिसमें हम example को देखेंगे. But before that you should know what is mean by mean. Mean अगर same है तो क्या होता है, mean अगर difference है तो क्या होता है, दोनों का जो variance है उसमें कितना difference होना. So basic some things you require. So here one example we have taken. अभी एग्जाम्पल को समझ लो कि एग्जाम्पल क्या है. यहाँ पे हमारे पास हमने 10 स्टूडेंट्स जो है मतलब 10 सैंपल के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किए. हमने एक टेस्ट रखी थी स्पेलिंग की टेस्ट. ओके तो स्पेलिंग टेस्ट 10 स्टूडेंट्स पे हम लोगों ने परफॉर्म किया है एंड दीज आर द स्कोर्स. व्हाट इज द स्कोर ऑफ दिस 10 स्टूडेंट. सो नाउ वी हैव टेकन द टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. दो ग्रुप बनाए थे. फर्स्ट ग्रुप में भी 10 स्टूडेंट थे, सेकेंड ग्रुप में भी 10 स्टूडेंट थे. तो दोनों ग्रुप में जो सैंपल हम लोगों ने लिए थे टेस्ट को चेक करने के लिए 10-10 थे, सेम थे. और वो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद दोनों ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनको कितने मार्क्स मिले ओके उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया है. सो दिस इज अ फर्स्ट वन. फर्स्ट जो ग्रुप है उनको कितने मार्क्स मिले, जैसे किसी को हाईएस्ट मार्क मिले जैसे 19, then 17, then 16, like 15. So यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये 15 से लेके तो 23 तक है. इसके बीच में स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले टोटल 10 स्टूडेंट को. ओके एंड जो सेकेंड वन है दिस इज एन सेकेंड ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट. जो सेकेंड ग्रुप स्टूडेंट्स है उनका जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसी को 17 मिले, समवन गॉट द 18, देन हाईएस्ट इज अ 20 एंड लास्ट जो वैल्यू है सॉरी हाईएस्ट इज 24. तो यहाँ पे मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 17 से लेके तो 24 के लिए है. एंड इन फर्स्ट डेटा सेट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम 15 to
23। ओके, सो दो जो डेटा सेट है, जो दो ग्रुप्स है, उनके ऊपर हमने टेस्ट लिया, टेस्ट के जो मार्क्स है वो हमने क्या किए, इस ग्राफ में प्लॉट किए इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कर्व आया है यहाँ पे, दिस कर्व, दिस इज कॉल्ड एज द बेल शेप कर्व। जनरली स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत बार यूज होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और लाइक स्टैटिस्टिक्स कर्व भी इसको काफी बार बोला जाता है, जिसमें हम एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्क्स का या कोई भी चीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बेल शेप या नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इसको बोला जाता है। देन हियर a t-test allows us to compare the means of two group। अब यहाँ पे मीन मतलब क्या होता है कि दोनों ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनको जो मार्क्स मिले हैं उसका हमने एवरेज निकाला। ओके, उस एवरेज को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टी टेस्ट के अंदर। सो हियर वी कंपेयर द मीन ऑफ टू टेस्ट। ओके, लेकिन सिर्फ मीन कंपेयर नहीं होता, इसमें वेरिएंस भी कंपेयर किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंपेयर किया जाता है। सो विल सी हाउ द थिंग्स आर कंपेयर्ड। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द मीन। अब मीन का डिफरेंस कहाँ पे, देखो आपको एरो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो एरो है ये फर्स्ट कर्व जो है ये उसका एवरेज वैल्यू थी, ये सेकेंड कर्व जो उसकी एवरेज वैल्यू। सो दोनों की जो एवरेज वैल्यू है, मतलब दोनों का जो मीन है, इसके बीच का ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ मीन। देन सेकेंड इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच ग्रुप। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या होता है कि उसका जो बेल शेप कर्व है ये कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, तो दोनों का कितना वेरिएशन है वो हमने चेक किया। एंड थर्ड इज द नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में कितने लोगों पे ये टेस्ट परफॉर्म किए। तो मैंने बताया था कि इसमें दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ सैंपल जो थे वो 10 थे। सो हियर the number of samples are same in each group. So in t-test we require the different things. First is we have to find out the average of two groups, जो भी दोनों ग्रुप पे जो भी टेस्ट लिया है उसका जो भी वैल्यू आया है उसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज में कितना डिफरेंस है, मतलब उनके मीन में कितना डिफरेंस है। सो दैट इज अ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन। सेकेंड, दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उसका जो बेल शेप कर्व है ये कितना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देन थर्ड वन इज हाउ मेनी सैंपल्स, कितने सैंपल्स पे या कितने लोगों पे ये टेस्ट हर ग्रुप में परफॉर्म किया गया है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स वी हैव टू कंसिडर। Then next is the size of standard deviation is also very important when we are finding the outcome of t-test. Okay, so here if you see here कि दोनों टेस्ट जो है उसका ये दो बेल शेप कर्व यहाँ पे दिया है उन्होंने। ओके, और दोनों के बीच में ये कितना क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन कितना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के मीन जो है, ओके, दोनों का जो मीन है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस वैल्यू इज सिमिलर, दिस वैल्यू इज सिमिलर, बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये जो बेल शेप कर्व कितना जगह पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट इसमें ये 15 से स्टार्ट हुआ है और 19 पे खत्म हुआ है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में पिंक जो कर्व है, इफ यू सी इट हैव स्टार्टेड ऑलमोस्ट फ्रॉम 13 एंड गोज बियॉन्ड 21। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 13 से लेके 21 तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सेकेंड एग्जाम्पल में पिंक कर्व के लिए, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में पिंक कर्व के लिए 15 से लेके 19 तक ही है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से कि यहाँ पे स्टूडेंट का जो वेरिएंस है, स्टूडेंट का जो मार्क्स का वेरिएंस है फर्स्ट इसमें बहुत कम है, मतलब 15 से 19 बस यही रेंज में, और यहाँ पे 12 से लेके तो 21 ये रेंज में क्या है, फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट को मार्क्स मिला है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड जो कर्व है ब्लू कलर का, इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको कि जो सेकेंड ग्रुप है स्टूडेंट्स का, दे गॉट द मार्क्स फ्रॉम 18 to 22। ओके, उनका रेंज है 18 to 22, बट इन सेकेंड एग्जाम्पल अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम 16 से लेके तो ऑलमोस्ट 24 तक उनका जो रेंज है वो इंक्रीज हुआ है। सो दोनों का मीन तो सेम है, दोनों का जो एवरेज वैल्यू है वो सेम है,
बट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफरेंस। इसके लिए सिर्फ मीन निकाल के नहीं चलेगा, हमको दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और उस स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डिफरेंस है वो भी पता चलेगा। जैसे अगर एग्जांपल हम ऐसे बोले कि यहाँ पे दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बहुत कम है, बहुत ही कम है। ओके मतलब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि दोनों ग्रुप में कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सेम मार्क्स मिले, दैट इज 18 एंड 19। ओके लेकिन यहाँ पे if you see the intersection point of the two example is varying in a huge form, जिससे हमको पता चल रहा है कि दोनों जो एग्जाम्पल है, दोनों जो ग्रुप है उसमें काफी सारे स्टूडेंट है जिनको मार्क्स मिले हैं 16 से लेके तो 21 कैटेगरी तक। तो बहुत सारे स्टूडेंट सेम है दोनों ग्रुप में। यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट है जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल सेम है। सो जितना सिग्निफिकेंस कम, इसका मतलब दोनों ग्रुप उतने ही डिफरेंट है। और जितना ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये जितना ज्यादा रहेगा, तो जितना ज्यादा इसका मतलब दोनों ग्रुप बहुत एक दूसरे से सिमिलर है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम प्लॉट करते हैं और उसका जब हम कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इट इज वेरी लेस, तो इसका मतलब दोनों ग्रुप में सिमिलैरिटी बहुत कम है। और जितना इंटरसेक्शन दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन के कर्व में ज्यादा होगा, इसका मतलब दोनों ग्रुप बहुत ज्यादा एक दूसरे से आइडेंटिकल है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। ओके सो दैट इज अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस थिंग। सो सेम वट एवर आई हैव टोल्ड कि जितना लेस ओवरलैप रहेगा, इसका मतलब वो ग्रुप एक दूसरे से उतने ही ज्यादा डिफरेंट रहेंगे। और जितना ओवरलैपिंग या इंटरसेक्शन ज्यादा रहेगा, उतना ही वो ग्रुप एक दूसरे से क्या रहेंगे, सिमिलर रहने वाले हैं। सो नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टी टेस्ट आर अवेलेबल। ओके या कौन से टेस्ट हमने कब यूज करना चाहिए। सो नाउ इट इज अगेन डिपेंड ऑन सम डिफरेंट पैरामीटर। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क, आर द स्कोर ऑफ टू मीन्स फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट। मतलब दो चीजें जो हमको कंपेयर करनी है, दो ग्रुप्स जिनको हमको कंपेयर करना है, जिनके ऊपर हमको टेस्ट परफॉर्म करनी है, वो दोनों ग्रुप जो है वो सिमिलर सब्जेक्ट से है, सिमिलर चीज पे दोनों को टेस्ट किया गया है। इफ इट इज यस कि हाँ दोनों जो है वो सेम सब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं, देन वी हैव टू परफॉर्म द पेयर्ड टी टेस्ट। लेकिन अगर दोनों सैंपल्स, दोनों ग्रुप्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर उनका टेस्ट परफॉर्म किया गया है, दैट मीन्स दे आर नॉट सिमिलर। ओके तो वहां पे हमको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, आर देयर द सेम नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। ओके दूसरा सिमिलैरिटी क्या है फिर, एटलीस्ट दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ सैंपल ये सेम है क्या। if they are same, then we have to go with the second test which is called as the equal variance independent t test। लेकिन अगर दोनों जो ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ सैंपल सेम नहीं है, तो थर्ड क्वेश्चन पूछना है हमको, आर द वेरिएंस ऑफ टू ग्रुप सेम। तो दोनों ग्रुप का हमको वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एटलीस्ट दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कुछ तो सिमिलर है। If it is same, then again we can perform the same test, that is equal variance independent test। लेकिन अगर कुछ भी सेम नहीं है, मतलब दोनों के ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म किया है दोनों का सेम सब्जेक्ट पे नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ सैंपल या ग्रुप वो भी सेम नहीं है, दोनों ग्रुप का जो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी सेम नहीं है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नथिंग सेम। सो वी हैव टू परफॉर्म एन अनइक्वल वेरिएंस इंडिपेंडेंट test। So depend on your data, you have to check which kind of test we can perform। Okay now there are basically in our syllabus they have given the two tests, one is a students t test and second is the Welch's t test। so जब हमारे पास इक्वल वेरिएंस है, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया जब हमारा वेरिएंस इक्वल होता है, ओके तो ये दोनों केस में हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे दैट इज अ स्टूडेंट टी टेस्ट। एंड व्हेन द वेरिएंस इज नॉट इक्वल, अगर जो दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, कुछ भी सिमिलर नहीं है, देन यू हैव टू गो विथ अ
Welch's t-test when there is no equalities in any case. So we will start with the student t-test. So here we will use a student t-test जहाँ पे हम ये assume कर रहे हैं कि दोनों जो population है वो कहीं ना कहीं पे equal है, लेकिन हम लोगों को उसका variance पता नहीं, वो हमको क्या करना है, find out करना है. Then second, टू सैंपल्स आर गिवन, मतलब दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2, दोनों में से हम कुछ तो सैंपल्स ले रहे हैं जिसके ऊपर हम ये टेस्ट परफॉर्म करने वाले, तो जिसको सैंपल को बोलेंगे N1 सैंपल एंड N2 सैंपल. N1 सैंपल इज फ्रॉम पॉपुलेशन 1 एंड N2 सैंपल इज फ्रॉम पॉपुलेशन 2. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट देयर वेरिएंस. जो दो सैंपल लिए हैं, दोनों सैंपल का हम वेरिएंस निकालेंगे. हमने ऑलरेडी देखा लास्ट लेक्चर में कि कोई भी जो डेटा दिया जाता है उसका मीन, उसका वेरिएंस और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं. सो दोनों का हमने वेरिएंस निकाला. अगर दोनों का वेरिएंस की वैल्यू क्या है, इफ इट इज इक्वल, सो वी कैन से दैट द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों जो पॉपुलेशन है उसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो नाउ ही कैन परफॉर्म द टी टेस्ट बाय यूजिंग अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसमें हमको और एक फॉर्मूला लगता है टी टेस्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जो हम सैंपल कंसिडर कर रहे हैं, ओके, तो हमने रैंडम सैंपल कंसिडर किए हैं पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 में. तो इस पॉपुलेशन में काफी बार ऐसा होता है, हमने एक आउटलायर देखा था कि कोई तो एक आधा स्टूडेंट या कोई तो एक आधा सैंपल ऐसा रहेगा जो बहुत ही डिफरेंट वैल्यू दे सकता है. तो कितनी वैल्यू डिफरेंट हो सकती, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए. सो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम. हम जब एग्जांपल देखेंगे यू विल गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग नाउ. So this is an like formula to calculate the student t-test, where we will in first we will find out the difference between the mean of first sample and second sample, and here we have to find out N1 is the sample number of sample from test 1, N2 is the number of sample from test 2, and SP means we have to find out the standard deviation. अगेन हमको इसके बाद लगता है अल्फा. अल्फा मीन्स सिग्निफिकेंस लेवल, जो जनरली हर बार जिसकी वैल्यू कंसिडर हम करने वाले 0.05, ये 0.010 भी होती है अगर हम पेयर्ड टेस्ट करते हैं. अभी हम पेयर्ड टेस्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज करने वाले है अल्फा यानी सिग्निफिकेंस की वैल्यू, दैट इज 0.05. अब ये सिग्निफिकेंस लेवल यानी क्या होता है, ये देखो हम नल हाइपोथेसिस करने वाले हैं कि अरे दोनों जो सैंपल है जिसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले दोनों क्या है, सेम है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस हुआ. और उसके अपोजिट क्या हुआ, नहीं, दोनों सेम नहीं है. ओके, हमने नल हाइपोथेसिस से कंसिडर किया कि दोनों जो सैंपल है जिसके ऊपर हमको टेस्ट परफॉर्म करनी है वो सेम है. ओके, और एक्चुअल रिजल्ट भी जो रिजल्ट था वो भी क्या था, ट्रू था, कि हमने जो बोला वही था. लेकिन फिर भी 0.05 मतलब 5% ये चांस हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद भी हमने उसको क्या किया, हमारे टेस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो कभी भी हम बोलते हैं ना कि अरे तुझे क्या लगता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, हम बोलते हैं अरे होगी, लेकिन 99%, 0.1% आई डोंट चांस. तो ये जो 0.1 या 0.5% ऐसा होता है कि राइट है, बट फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, कभी कभी चेंज हो सकता है हमारा आंसर. सो दैट इज अ 0.05. एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसका फॉर्मूला होता है N1 plus N2 minus 1. That means the number of sample in first plus number of sample in second data set minus 1. And we have to compare, ये final जो t की वैल्यू निकलने वाली है, ओके, वी हैव टू कंपेयर दिस वैल्यू विद द क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू को डिनोट किया जाता है टी स्टार के साथ. ओके, सो एग्जाम्पल अभी हम जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब टी की वैल्यू हमने निकाली है और टी स्टार मतलब क्रिटिकल वैल्यू हम टेबल से लेते हैं, टेबल जो ऑलरेडी दिया जाता है, एंड वी हैव टू कंपेयर दिस टू वैल्यू. अगर कंपेयर करने के बाद टी की वैल्यू टी स्टार की वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है. और अगर टी की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू यानी टी स्टार से लेस है तो ही हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है. दैट्स इट. ओके,
नाउ सेकेंड इज द वेल्चन्स टी टेस्ट। तो दोनों का ऑलमोस्ट फॉर्मूला और स्टेप सेम है, लेकिन इस फॉर्मूला में उन्होंने क्या किया है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उन्होंने इनसाइड यानी एस की वैल्यू जो टी टेस्ट में बाहर थी, स्टूडेंट टी टेस्ट में, यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रूट के अंदर ले ली है, दैट्स इट। बाकी सब सेम है। नाउ विल सी एक्चुअल एग्जांपल। अब एग्जांपल अच्छे से देखो, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल आते हैं, तो एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज। एग्जाम्पल समझ में आए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि टी टेस्ट की वैल्यू कैसे परफॉर्म की जाती है। देखो अभी यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सम ब्राउन हेयर्स वेर फाउंड ऑन द क्लोथिंग ऑफ अ विक्टिम एट अ क्राइम सीन। कहीं तो कुछ क्राइम हो गया था, ओके, और उस क्राइम पे जब पुलिस पहुंची तो वहां पे जो क्लोथ थे वहां पे उनको कुछ ब्राउन हेयर्स फाइंड आउट हुए, ओके। तो उन्होंने क्या किया, द 5 ऑफ हेयर्स वेयर मेजर्ड, उसमें से 5 हेयर्स जो है उसको मेजर किया, उसकी थिकनेस जो होती है वो मेजर की। सो इट कम्स लाइक 46, 57, 54, 51 एंड 38 माइक्रोमीटर। ये उनको वैल्यू जो है उन्होंने क्या वहां पे उनको उन्होंने मेजर किया, जो सस्पिशियस जगह से जो हेयर मिले थे उससे। देन सेकेंड, अ सस्पेक्ट इज द ओनर ऑफ द शॉप विथ सिमिलर ब्राउन हेयर। तो उन्होंने एक जो उस जहाँ पे ये जो भी क्राइम हुआ था वहां का जो ओनर है, उस शॉप का ओनर, उसके भी हेयर ब्राउन थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको एज ए सस्पेक्ट कंसिडर किया और उसके भी हेयर के 5 सैंपल्स लिए। तो 5 सैंपल फ्रॉम क्लोथिंग, जो उनको विक्टिम की जगह से मिला था, क्राइम की जगह से, वो लिया, और दूसरे उन्होंने जो उनको सस्पेक्ट लग रहा था कि ये बंदा हो सकता है जिसने क्राइम किया, उसके हेयर के 5 सैंपल लिए। तो दैट इज अ 31, 35, 50, 35 एंड 36 माइक्रोमीटर, ओके। तो दो सैंपल है हमारे पास। फर्स्ट सैंपल में भी मतलब दो डेटा सेट है, फर्स्ट डेटा सेट में 5 हेयर्स है एंड सेकेंड डेटा सेट में भी 5 हेयर्स के सैंपल्स है, ओके। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस लेवल दिया है दैट इज अ 5%, मतलब 0.05% ये सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी है। अब नाउ वी हैव टू परफॉर्म द टी टेस्ट। सो टी टेस्ट में हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया जिसमें ए में जो फर्स्ट हेयर के जो वैल्यूज थे वो डाल दिए, सेकेंड इसमें सेकेंड जो हमने ओनर के जो हेयर के सैंपल्स लिए थे उसकी जो वैल्यू आई थी वो सेकेंड टेबल में डाल दी, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मीन निकालना है, तो हमने क्या किया, पहले दोनों के टोटल निकाल लिए। सो दोनों जो हेयर है उसका जो वैल्यू है उसका टोटल निकाला। आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट इट्स वेरिएंस, सॉरी इट्स मीन, मतलब उसका एवरेज निकाल लिया, यानी इस वैल्यू को डिवाइड बाय 5 कर दिया, एवरेज निकाला। और एवरेज के बाद मैंने ऑलरेडी कल बताया इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते, तो मैंने स्किप किया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट by finding the mean and after minusing this value from every value, और उस वैल्यू को हम स्क्वायर करते हैं, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वेरिएंस एंड देन आफ्टर वेरिएंस उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। सेकेंड स्टेप में दोनों वैल्यू, यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू आई है, दोनों मीन और दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले हमको मीन जो है उसका डिफरेंस निकालना पड़ता है। सो दैट इज x1 बार माइनस x2 बार। तो यहाँ पे हमने दोनों का जो मीन आया था उसको हमने माइनस कर दिया और यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू है दोनों डेटा सेट के एवरेज में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू, सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर इन द डिफरेंस। जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसमें भी जो डिफरेंस है उसका एरर निकाला जाता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, n1 मीन्स नंबर ऑफ सैंपल इन डेटा सेट A, देन प्लस सेकेंड वैल्यू जो है, सेकेंड डेटा सेट जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स इन सेकेंड डेटा सेट। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे फर्स्ट जो है, फर्स्ट डेटा सेट जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 7.4 एंड सेकेंड डेटा सेट जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 7.3, और दोनों में नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोनों में n1 और n2 की वैल्यू क्या है हमारी, 5 एंड 5।
तो थर्ड स्टेप जो है उसको हमने वैल्यू यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस सेकेंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने सॉल्व किया। ये पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यू आई है दैट इज 4.669 विच इज नियरली इक्वल टू 4.67। ओके, दिस इज अ थर्ड स्टेप जो हमने परफॉर्म किया। फोर्थ स्टेप, अब हमको एक्चुअल टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी के लिए जो फॉर्मूला है ऊपर जाता है डिफरेंस ऑफ मीन और डिवाइडेड बाय जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर निकाला था, यानी सेकेंड स्टेप की वैल्यू डिवाइडेड बाय थर्ड स्टेप की वैल्यू। ओके, सो सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाय थर्ड स्टेप की वैल्यू। तो सेकेंड स्टेप में जो वैल्यू आई थी हमारी दैट इज 11.8 एंड थर्ड स्टेप में जो वैल्यू आई थी दैट इज 4.6। इन दोनों का डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद वैल्यू आई है 2.523 विच इज नियरली इक्वल टू 2.53। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको जो निकालना है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हमने ये टी की वैल्यू जो है हमने निकाल ली है, टी कैलकुलेट हो गया है। अभी हमको टी स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमको लास्ट में टी को कंपेयर करना है टी स्टार यानी क्रिटिकल वैल्यू के साथ। तो टी स्टार की जो वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको लगता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके लिए स्टेप 5 में नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बहुत ईजी है, that is equal to n1 plus n2 minus 2, मतलब number of samples in first data set plus number of samples in second data set minus 2। तो हमको पता है दोनों डेटा सेट में सैंपल्स कितने 5 तो इसके लिए हमने किया 5 plus 5 minus 2 which is equal to 8। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसकी वैल्यू आ गई है 8। नाउ व्हाट टू डू विथ दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है एक प्री डिफाइंड टेबल जो होता है वो ऑलरेडी पहले ही दिया होता है। जैसे टी टेस्ट के लिए टेबल ऑलरेडी गिवन, लाइक विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट, हर टेस्ट के लिए बुक में आपको एक टेबल जो है ये पहले से ही दिया होता है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट सिग्निफिकेंस वैल्यू फ्रॉम दैट टेबल यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे मैंने उस जो टेबल है उसका एक स्नैपशॉट लिया है। तो ये स्नैपशॉट में अब हम देखेंगे कि हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो 8 था, तो ये हो गया डीएफ। डीएफ मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 8 की वैल्यू कहाँ पे है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 8 की वैल्यू है वहां से जाके लास्ट में देखो, दिस इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंस लेवल, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05। तो हमको पता है हमने जो सिग्निफिकेंस लेवल है ये हमारा 5% है, दैट इज 0.05। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 8 नंबर के रो के लिए ये वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। सो दिस वैल्यू वी कॉल एज अ टी स्टार। टी स्टार मीन्स इट इज अ क्रिटिकल वैल्यू। हमारे पास फोर्थ स्टेप में टी की वैल्यू आ गई, सिक्स स्टेप में टी स्टार की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमको ये दोनों जो वैल्यू है इसको क्या करना है, अभी कंपेयर करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टी विथ टी स्टार। अगर टी की वैल्यू टी स्टार से लेस है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि विक्टिम और वो जो ओनर है, जो सस्पेक्टेड है, ये दोनों क्या है, सेम पर्सन है। लेकिन अगर टी की वैल्यू टी स्टार से ग्रेटर या इक्वल है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। मतलब दोनों जो पर्सन है, जो इसने क्राइम किया था और जो ओनर जिसके हेयर लिए थे, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो अभी हमारे केस में जो टी की वैल्यू थी यहाँ पे आई थी, see here we have calculated t की वैल्यू क्या थी 2.3 और यहाँ पे ये वैल्यू जो आई थी t की क्या थी, सॉरी here the value is 2.53 and here the value is 2.3। so t की वैल्यू जो है ये t स्टार से क्या है, ग्रेटर है। सो जैसे ये ग्रेटर आ गई इसका मतलब क्या है, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मतलब विक्टिम और ओनर ये दोनों क्या है, डिफरेंट पर्सन है। ओके, सो वी विल जस्ट स्टॉप आवर लेक्चर हियर। हमने सिर्फ टी टेस्ट जो है यहाँ पे पूरा क्लियरली देखा था। अभी अटेंडेंस जो है उसका मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। आज